Hello everyone, welcome to IPMAT by LPT. So in this video today we are going to talk about the concept, fill in the blanks based on the vocabulary. मैं किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, this is going to be a very important for your upcoming entrance exams. Right? So let's understand कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे. So the very first thing you need to understand, you need to read the full sentence carefully. जल्दबाजी में हम ऑप्शंस पर सीधा जंप नहीं करेंगे, राइट? हो सकता है सेंटेंस बहुत इजी लग रहा हो, सेंटेंस की लैंग्वेज बहुत इजी लग रही हो, स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू जंप डायरेक्टली ऑन द ऑप्शंस. हमको पहले उसका टोन समझना है सेंटेंस का, कि इज इट गोइंग पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, and what is the actual purpose of this sentence, right? Second one, spot the conceptual clues. Author हर sentence में आपको एक clues देकर जाता है. You need to understand कि वो clue कौन सा word है, वो clue आपको क्या indicate कर रहा है, right? जैसे कि बहुत बार sentences में हम लोग although, but, despite, hence, because, therefore ऐसे words देखते हैं. So these words reflect, these words signal the missing words. या तो वो उसे ब्लैंक से एग्री कर रहा होगा या उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा, right? So look for the clue which the author has kept for you. Again, if you are in a rush, हो सकता है कि आप ये clues author के ने जो रखे हैं वहां पर you miss them. So go slowly, understand the sentence, look for the clues and then pick up the correct answer. Okay, predict your own word. Predict your own word before going to the options. जो options मुझे, जो MCQs मुझे दिए हैं, वहां पे जाने से पहले आप पहले अपने आप को अपने words में उसका आंसर दीजिए. उससे क्या होगा, जब मैं options पढ़ने शुरू करूंगी, so I know कि what category of the word I am looking for. So I will not get confused between the options. Check the word meanings carefully. Now this is something which is where my vocab comes into the picture. IPMAT या UG का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, वो थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमेशा देता है. 2 या 3 ऑप्शंस या 2 या 3 वर्ड्स ऐसे जरूर होंगे जो बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे के. So you need to pull your vocabulary to know the difference between such words. So accordingly, your answer is appropriate. Yes, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं, eliminate the wrong options. Eliminate the wrong options. आपको आंसर नहीं ढूंढना है, आपको अपने आप को एक valid reason देना है कि why this option is not appropriate. There is a difference. आप आंसर ढूंढेंगे, आप फर्स्ट ऑप्शन को ही अपना आंसर मान लेते हैं, राइट? पर अगर हम बी, सी एंड डी की बात करें तो आई हैव टू गो एंड सी कि बेस्ट ऑप्शन कहाँ पर है. सो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, आंसर को पिक नहीं, राइट? अब हम कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे? जो टोन के साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं. मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है एंड वर्ड नेगेटिव है और वाइस वर्सा. So you need to eliminate the words which is not going appropriate according to the tone. Do not fit grammar, right? हर sentence में grammar का use होता ही है. Adjective, noun, ये mismatch जा रहा है. वो जो word है उस noun के को fit ही नहीं कर रहा है, उस noun को complement ही नहीं कर रहा है. Right? They are too extreme compared to contest. बहुत extreme versions हैं वो. So again, I won't be picking up that option. I will be eliminating. Read with the chosen words. अब वापस you need to read the full sentence with after putting the word which you have picked. Right? So again, I'm saying the same thing. Elimination is a very important task. आपको eliminate करना है by giving the proper reason कि why this option is not there. Right? Always plug your answer back into the sentence. If it flows naturally, you are good. Put this word in that sentence and see the rhythm of that sentence.
right? So these are the few steps which I will suggest you to follow while doing the fill in the blanks questions, right? चलिए, so let's do one sentence and let's see कि हम इन्हीं steps को कैसे वहां पर implement करते हैं. तो very small sentence, she gave a dash reply about her mistakes. तो ये word मेरा किसको represent कर रहा है? Reply को, right? Now she gave dash reply. मुझे sentence positive लग रहा है, right? Sentence is coming up as a positive. उसने अपनी गलतियों का dash reply दिया. So अगर मैं positive जा रही हूँ तो dishonest is not going to be the one. Confused is not going to be the one. Careful and candid आ सकता है, पर उसका रिप्लाई है तो वो केयरफुल रिप्लाई होगा या कैंडिड होगा. ओके, अब यहाँ पर अगर मुझे कैंडिड का मतलब पता है देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी. अगर नहीं पता तो हो सकता है कि आप लोग पहले कैंडिड को एलिमिनेट करें. सो अगेन वोकैबुलरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट. तो शी गेव ऑनेस्ट रिप्लाई अबाउट हर मिस्टेक्स और she gave a careful reply about her mistakes. Careful action हो सकता है ना? Careful answer हो सकता है, but not the reply. So yes, my answer is going to be candid. I hope you are noticing the steps which I am following. पहले मैंने sentence को पढ़ा, comprehend करा, उसका tone देखा, अपने आप को आंसर दिया कि कैसा वर्ड आ सकता है, ये ब्लैंक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्लाई को. एंड देन आई मूव फर्दर एंड आई वाज अवेयर अबाउट द मीनिंग कॉल कैंडिड. अगर आपको कैंडिड का मतलब नहीं भी पता है ना, देन ऑल्सो डोंट एलिमिनेट दिस ऑप्शन बाय सेइंग कि मुझे इसका मतलब नहीं पता है तो ये तो नहीं ही होगा. थिंक, क्या केयरफुल रिप्लाई आ सकता है वहां पर? अगर नहीं, then you are left only with the B option, right? So don't eliminate the word just because you do not know the meaning of that word, right? Moving ahead to the question number 2. The principal addressed us in assembly and dashed the rumors of early summer break. Okay, प्रिंसिपल ने हमें असेंबली में एड्रेस करा, मतलब उन्होंने कोई बात कही एंड उन्होंने र्यूमर्स को, जो र्यूमर्स थी अर्ली समर ब्रेक की, उनको डैश किया. सो अगेन दिस वर्ड इज टॉकिंग अबाउट द र्यूमर्स. जो ब्लैंक है वो र्यूमर्स को जा रहा है, right? अब र्यूमर्स को हमने क्या किया होगा? सही डिक्लेयर करा होगा. मतलब सही डिक्लेयर मतलब उसकी जगह जो सही बात है वो बताई होगी. तो र्यूमर्स को कैंसिल करा होगा, गलत बोला होगा, है ना? कि असेंबली में, स्कूल में बहुत सारे र्यूमर्स हो रहे होंगे कि एक हफ्ता पहले ही समर ब्रेक शुरू हो रहा है, पर प्रिंसिपल ने आकर उस बात को गलत बोला. क्या दैट र्यूमर्स आर रॉन्ग, राइट? ओके, अगर रिब्यूक का मतलब इट इज लाइक रिफ्यूज करना, क्या निगेट करना, राइट? दिस इज द मीनिंग फॉर द रिफ्यूज. डिफेंड, मैं अपनी बात को डिफेंड करूंगी, मैं अपने पॉइंट को डिफेंड करूंगी, मैं र्यूमर को डिफेंड नहीं करूंगी. डिफेंड इज लाइक अ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्ट. मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोटेक्ट कर रही हूं, राइट? मैं र्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं करूंगी. हाँ, क्लियर्ड द र्यूमर, र्यूमर को साफ करा, सही बात बताई, राइट? स्क्वॉश, यू कैन नॉट स्क्वॉश द र्यूमर, एब्सोल्युटली नहीं. सो बी एंड डी तो एलिमिनेट हो गए. अब र्यूमर को मैं क्या करूंगी? गलत साबित करूंगी या क्लियर करूंगी? मैं गलत साबित करूंगी. आंसर इज गोइंग टू बी ए, क्लियर नहीं होगा. लाइक मिसकंसेप्ट्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, नॉट द र्यूमर्स. र्यूमर्स रिब्यूक होंगी, उनको गलत बोला गया. गेटिंग? एंड यू कैन सी कि हर बार दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं और दो ऑप्शंस क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं. बट दैट बिकम्स अगेन, अगर आपको सेंटेंस क्लियर है, सेंटेंस में वर्ड की रिक्वायरमेंट क्लियर है, सो अगेन इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर पिकिंग अप द करेक्ट आंसर, राइट? मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 3. A small dash between two children ended up into quarrel. ओके, नेगेटिव जा रहा है.
कुछ पहले हल्का हुआ एंड इट टर्न्ड इनटू द कोरल, सम डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पर लास्ट में कोरल है, नेगेटिव है। अ स्मॉल मैच बिटवीन टू चिल्ड्रन एंड इनटू द कोरल, हो सकता है ना कि वो लोग कोई मैच खेल रहे हो क्रिकेट का, फुटबॉल का, और वो लास्ट में लड़ पड़े हो, राइट, इट कैन बी। contest is the small contest, nahi, this is not going to be there. A small range between the two children, again it won't be there. Altercation is the verbal argument, मैं किसी से बहस कर रही हूँ, I am verbally arguing with someone, right? So a verbal argument is like a kind of I'm opposing someone, I'm not agreeing with someone, and that is also coming up as a negative thing, and वही आगे चलकर quarrel में बढ़ गया, लड़ाई में पड़ गया, right? So match से better option D है. A small match between ended up into quarrel, yes it there, but यहाँ पर sentence में कुछ play जैसा reflection नहीं आ रहा था, right? So अगर altercation नहीं होता, कुछ और word होता contest range की तरह, तो वो भी eliminate होता, right? But according to the given sentence, yes, altercation is the word which means verbal argument, right? Moving ahead, although, okay, now although आ गया, मैं यहीं पर रुकूंगी and I will say कि that two opposite thoughts are going to be there. Although contradict करता है, टू अपोजिट थॉट्स को मुझे इंट्रोड्यूस करने वाला है सेंटेंस में, राइट? मैं पहले ही अपने माइंड में ये नोशन रख लूंगी. सो ऑल्दो द मैनेजर अंडरस्टूड द प्रेशर हिज टीम वाज अंडर, अच्छा, उसको पता था कि उसकी टीम किस प्रेशर में है. ही कुड नॉट डैश देयर डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस, यहाँ पर वो उनके साथ ये लाइक सिंपथाइज जैसी मोमेंट में है, उनको समझ रहा है कि वो कौन से प्रेशर पे है, पर तब भी वो नहीं कर पाया उनकी डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस को, नजरअंदाज नहीं कर पाया, एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इग्नोर नहीं कर पाया, दैट काइंड ऑफ अ वर्ड. क्योंकि ये दो सेंटेंसेस के पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को अपोज करने वाले हैं, ऑल्दो मुझे बता रहा है, राइट? यहाँ पर वो उनके साथ था, पर यहाँ पर वो उनके साथ नहीं है, right? Looking into the words, convene is like meeting everyone, like coming formally together, convene. So he could not convene their dishonest practices, नहीं, ये तो meeting जैसा word reflect हो रहा है. Confine is again, it is not the word जो उसकी dishonest practices के लिए जाए, मुझे dishonest practices के लिए word चाहिए. Condone is like going to ignore, right? Going to ignore. He could not ignore their dishonest thing. He cannot accept their dishonest practices. Yes, this looks good, पर D भी है. Console किसी को, you like किसी के, when somebody is sad, उसको हम कंसोल करते हैं. यहाँ पे सैडनेस जैसी बात नहीं है, यहाँ पे डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस जैसी बात है. सो अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर, सी इज गोइंग टू बी द आंसर. जब मैं किसी की गलत बातों को एक्सेप्ट करती हूँ, व्हेन आई एक्सेप्ट द रॉन्ग डूइंग ऑफ समथिंग, व्हेन आई इग्नोर द रॉन्ग डूइंग ऑफ समथिंग, दैट इज अ वर्ड कॉल्ड कंडोन. सो यस, यहाँ पर डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, गलत चीज है, वो उसकी गलत चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, right? So यहाँ पर it is a very good hint author ने जो दिया हुआ था, although, right? Moving to the next question, the lawyer was dash yet persuasive, careful weighing each word before presenting her argument. So lawyer dash था पर persuasive था. अगर मुझे persuasive का मतलब नहीं भी पता, still I can understand the word carefully. So मतलब वो बहुत ध्यान से अपने वर्ड्स यूज कर रहा था अपने आर्ग्यूमेंट में. yet इसके बावजूद, तब भी, राइट? तो यहाँ पर अगेन मुझे केयरफुल जैसा वर्ड ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए.
तो रैश तो नहीं आएगा, रैश तो इज गोइंग टू बी लाइक एंटोनिम जैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट. सर्कमस्पेक्ट इज अगेन केयरफुल, है ना, मैं हर तरफ देख रही हूं. अगर मैं यहाँ पे रूट वर्ड्स अप्लाई करूं तो सर्कम का मतलब है अराउंड एंड स्पेक्ट का मतलब है टू लुक. दीज आर द रूट वर्ड्स. तो सर्कमस्पेक्ट, आई एम लुकिंग अराउंड, आई एम केयरफुल, राइट. अब यहाँ पर ये वर्ड आ सकता है कि वो केयरफुल था, तब भी वो बहुत ध्यान से अपने वर्ड्स को देख रहा था कि वो कौन सा वर्ड अपने आर्ग्यूमेंट में डाले. यस, बी कैन बी द आंसर. केयरलेस अगेन नहीं, अगेन वो अलग टोन जा रही है. इम्पल्सिव भी नहीं, अगेन टोन इज गेटिंग डिफरेंट. यस, माई आंसर इज गोइंग टू बी बी, राइट. Even though I was not clear with this word in the sentence, but मैंने पूरे sentence का tone समझा and I was able to pick up eliminate the options from there. I hope you people are getting how to pick up the word. Question number 6. Many people purchase things they later realize they neither dash or dash. They have already purchased. And then they realize, नाही, neither is नाही, कि उनको चाहिए थी और ना ही उनके यूज में थी. काइंड ऑफ द सेंटेंस, राइट. तो यूज एंड डिजर्व, यूज इज ओके. they later realize they neither use or deserve. ओके, ठीक है, डिजर्व कैन बी द वन, रख लेते हैं, लग रहा है, हो सकता है आंसर. नीदर नीड एंड डिजायर, उनको जरूरत नहीं थी और ना ही उनको डिजायर थी. जब हम लोगों ने हिंदी में अपने आप को आंसर दिया तब भी हम लोगों ने यही बोलता, ना ही उसकी जरूरत थी ना ही उसके यूज था, राइट. सो दिस लुक्स मोर अप्रोप्रिएट एज कंपेयर टू ए. Adopt and preserve is not going to be the one. Specialize and the consume is also not going to be the one. B is going to be my answer, right. जब दो ब्लैंक्स आते हैं तो पहले आप किसी एक ब्लैंक को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बेसिस पर आप एलिमिनेट करेंगे एंड देन यू विल मूव फर्दर. ठीक है, दिस इज अप्रोच टू फॉर द टू ब्लैंक्स. नाउ अगेन देयर आर टू ब्लैंक्स, सो ट्राई टू सेटिस्फाई फर्स्ट ब्लैंक, या दोनों में से किसी भी एक ब्लैंक को सेटिस्फाई कीजिए, उसके हिसाब से वर्ड्स उठाइए, एलिमिनेट कीजिए एंड देन मूव फर्दर, राइट. दे हैव परहैप्स नॉट बीन टॉट द डैश ऑफ रीडिंग एंड द डैश रोल इट प्लेज इन एजुकेशन. एंड आ रहा है, रीडिंग से रिलेटेड मुझे दो वर्ड दे रहा है, ना ही उनको ये सिखाया गया ना ही उनको ये सिखाया गया, राइट. अच्छा, अगर मुझे अब यहाँ पर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दोनों मुझे सिनोनिम्स चाहिए, राइट. आई नीड द सिनोनिम्स ओवर हियर, क्योंकि वहां पर एंड जैसा वर्ड आता है. अगर और आ रहा होता तो आई अंडरस्टैंड कि वो कुछ यू लाइक शायद किसी और डायरेक्शन में मेरी बात हो रही होती, राइट. पर यहाँ पर इट इज टॉकिंग मोर अबाउट द काइंड ऑफ अ सिनोनिम. तो उनको क्या नहीं सिखाया गया. Giving my answer to myself, they have perhaps not been taught the dash of reading. Importance, right? And the dash role, again important role of it plays. जो रीडिंग है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है मेरी एजुकेशन में, वो नहीं सिखाया गया, राइट. ओके, यहाँ पर इंसेंडरी तो नहीं आएगा, इट इज कमिंग अप एज अ नेगेटिव वर्ड. इंपॉर्टेंट आ सकता था बट इंसेंडरी वर्ड इज नॉट गोइंग टू बी देयर. सो यस. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ब्लैंक फर्स्ट. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ब्लैंक. लेट्स टॉक अबाउट कि सेकंड ब्लैंक में कौन सा वर्ड आ सकता है. सेकंड वर्ड में मुझे इंपॉर्टेंस जैसा वर्ड चाहिए, राइट. आई नीड काइंड ऑफ सम इंपॉर्टेंट वर्ड. मैग्निफिशेंट आ सकता है, इंपॉर्टेंट आ सकता है, पाइवेटल आ सकता है. अडेप्ट नहीं आएगा. अडेप्ट का मतलब स्किलफुल होता है. अडेप्ट का मतलब स्किलफुल होता है. सो यहीं पर मेरा डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. सेकंड ब्लैंक में ए बी सी आ सकता है. अब इसी
इसी वर्ड का, इम्पोर्टेंट का, मैग्निफिसेंट का, पाइवेटल का मुझे सिनोनिम चाहिए आगे. Incendiary is not going to be there. This is related with the fire, right? Inanimate is also something which is not relevant, जिसका कोई significance नहीं है. So again ये दोनों word synonyms नहीं है. मेरे synonyms क्या है? C, right? So answer is going to be C. I hope you people are getting कि how to approach. मैंने पहले second blank satisfy किया, then I move towards the first blank. कोई भी आप blank satisfy कर सकते हैं. It's not important कि first blank ही आपको satisfy करना है. Moving ahead to the question number 8. This dash and dash man was actually the dash manager the company ever had. Right? अब ये यहाँ पर man की क्वालिटीज की बात कर रहा है, ट्रेड्स की बात कर रहा है. पॉजिटिव ही होगा कि उसका ये क्वालिटीज थी जिसकी वजह से वो डैश मैनेजर निकला द कंपनी एवर हैड, अभी तक उन्होंने लिया. राइट? अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को पॉजिटिव्स कंसिडर करूं, सो एसिडियस इज हार्ड वर्किंग, मेहनती. राइट? but ludicrous is something which is जिसका मजाक उड़ाया जा सके. so it is not going to be there. ये these are not coming up into the one same direction, right? so this is not going to be there. मैंने यहीं पर A ऑप्शन को ड्रॉप कर दिया. मैंने सेकंड थर्ड ब्लैंक को नहीं कंसिडर करा. सेकंड एसिडियस, यस. एनालिटिकल, जो बहुत अच्छे से एक एक चीज को एनालाइज कर रहा है, इट कैन बी देयर. राइट? ये दोनों ब्लैंक्स फर्स्ट में सेटिस्फाई हो रहे हैं. अभी मैं थर्ड पर नहीं जाऊंगी, बट यस, बी कैन बी द आंसर. वेल ग्रूम्ड एंड असर्टिव. अच्छा, वेल ग्रूम एंड असर्टिव वापस दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं, बट कैन अ असर्टिव मैन बी अ एक्चुअल क्वालिटी फॉर द मैनेजर? राइट? so yes, again these words are not going to be fulfilled. I will eliminate. kind hearted and thoughtful, हम मैनेजर की बात कर रहे हैं. मैनेजर काइंड हार्टेड है तो वो एम्प्लॉयज को कंट्रोल कैसे करेगा? राइट? सो अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू बी देयर. यू शुड बी हम्बल बट नॉट लाइक काइंड हार्टेड वाला वर्ड फॉर द मैनेजर. राइट? सो अगेन बी इज एलिमिनेटेड. आई एम लेफ्ट ओनली विद द बी. पर तब भी मैं देखूंगी क्या बेस्ट मैनेजर वहां पर सूट हो रहा है थर्ड में. यस, हिज एसिडियस. This assiduous and analytical man was actually the best manager the company ever had. So यहाँ पर मुझे दो पॉजिटिव क्वालिटीज भी लग रही हैं एंड कंपनी ने उसको था अभी तक का बेस्ट था. दैट इज व्हाट माय सेंटेंस इज लुकिंग फॉर. राइट? मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 9. टुडे क्रिप्टो. ओके, सो नाउ यहीं पर आई विल स्टॉप एंड आई विल सी कि क्रिप्टो इज व्हाट. क्रिप्टो इज कमिंग अप एज अ करेंसी. इट इज अ करेंसी, इट इज अ डिजिटल करेंसी. सो फर्स्ट ब्लैंक में कहीं करेंसी आना चाहिए. सेविंग नहीं, वेकेशन तो बिल्कुल भी नहीं, करेंसी आई एम गेटिंग. ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी हो सकता है क्योंकि मैं खरीदती बेचती हूँ. सो फर्स्ट ब्लैंक से ही मैंने ए एंड बी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया. आर बिकमिंग डैश इन इंडिया, ट्रेंड बढ़ रहा है, ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन आना चाहिए. तो फैशनेबल भी आ सकता है, ट्रेंडी भी आ सकता है. एज डैश आर कीन टू यूज द क्रिप्टो करेंसी टू ट्रैवल अराउंड द कंट्री. नाउ यंगस्टर्स यूज और बिजनेसमैन यूज. राइट? it is more appropriate with the youngsters because crypto is a currency for the young people. It is not actually is a currency for the young people, but it has been just there in the market. So businessman becomes a very wide concept. उसमें like elder people भी आ जाएंगे, young भी आ जाएंगे. But youngsters becomes like today's generation. Yes, it is going to be, the answer is going to be C. So first blank से ही I started eliminating the options. मैंने A and B को वहीं पर eliminate कर दिया था. Right? Moving to the question number 10. The government's demonetization initiative aimed to dash illicit black money. Okay. Demonetization से क्या aim था गवर्नमेंट का?
इलिसिट करना ब्लैक मनी को, ब्लैक मनी को क्या करना, ब्लैक मनी को ऑटोमेटिकली वो खत्म करना चाहती थी, है ना। तो रिस्ट्रेन तो नहीं आएगा, कर्ब आ सकता है, इंकरेज भी नहीं आएगा, कंसोल भी नहीं आएगा. So yes, curb is the one word which going exactly with the first sentence. But let's go read further. From the economy by dash the high demonetization currency notes in circulation. उसने high demonetization currency को क्या करा, मार्केट से withdraw करा, मार्केट से हटा दिया. Yes, answer is going to be B. So कई बार ऐसा होगा कि एक ही ब्लैंक के उससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. कभी फर्स्ट एक ही ब्लैंक में ऑप्शंस क्लोज भी लगेंगे. सो यू नीड टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन टू यू, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस विच इज गिवन टू यू. राइट. क्वेश्चन नंबर 11. द ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट्स द एग्जाम्पल सेट बाय इट्स लीडर. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट करता है एग्जाम्पल्स को जो उसके लीडर्स ने सेट करे हैं. I always reminded our business heads that their personal dash shaped the dash of their organization. अब यहाँ पर examples की बात हो रही थी, तो it's like coming up as a good example, क्योंकि तो वही organization reflect करेगा. तो यहाँ पर heads क्या करेंगे, heads reflect that their personal serendipity. Serendipity is like good things, good events rather, happening by chance. राइट, हैपनिंग बाय चांस. मैंने प्लान नहीं करा है, पर दे आर हैपनिंग ऑन देयर ओन एंड दे आर गुड इवेंट्स. तो ये पर्सनल गुड इवेंट्स शेप्ड तो नहीं आएगा. राइट. सो यहां पर सेरेंडिपिटी वैसा वर्ड इज नॉट गोइंग टू बी देयर. राइट. fox pass, this is the word which is related with the blunder. Again, shape the blunder of their organization is not going to be there. I need a positive. किसी positive चीज ने मेरी organization को एक positive part दिया है, right? So A option is being eliminated, right? Second, their personal predilection. Predilection is again like a liking. Their personal liking shape the disappear of the organization? Absolutely नहीं. Their personal intensity, yes, intensity हो सकता है. Their way of working, that is going to shape the success. Yes, it can be my answer. Both the words are coming up. Right. Looking for the word oddity. Oddity is again something which is like self-centric, right? Something which is like strange behavior से भी आप इसको relate कर सकते हैं. स्ट्रेंज बिहेवियर, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर. अगर वो सेल्फ सेंटर्ड होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉजिटिव शेप नहीं देगा, वो अपना फायदा देखेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं देखेगा. सो अगेन डी इज एलिमिनेटेड. माय आंसर इज गोइंग टू बी सी. राइट. वर्ड्स वर डिफिकल्ट इन दिस ऑप्शंस, बट अगर आप देखो तो हर एक ऑप्शन में एक वर्ड के हिसाब से आप अगर आप एलिमिनेट करो तो इट इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड. Elimination is the key. Right? Moving ahead, the last question. In recent times, vitamin E has dash as a dash solution for our hair dash. Okay, now solution आ रहा है, hair आ रहा है. तो यहाँ पर hair problem, hair concern, hair growth ऐसा कुछ word आना चाहिए. Right? तो पहले मैं इसी को satisfy करती हूँ. हेयर प्रॉब्लम आ सकता है, हेयर सिचुएशन आ सकता है, हेयर वॉज नहीं आएगा, हेयर कंडीशन आ सकता है. सो सी एलिमिनेट यहीं पर हो गया. विटामिन ई हैज डैश एज अ डैश. अगेन वो उसको पॉजिटिव कर रहा है, तभी वो सॉल्यूशन का आगे मुझे सॉल्यूशन का मुझे वो इज ट्राइंग टू सॉल्व दैट थिंग. राइट. सो इट हैज टू बी पॉजिटिव. Right? Appeared, vitamin E appeared as a good solution. Yes. Vitamin E has unfolded condition होगी. Unfolded as a word नहीं आएगा.
यहाँ पे बेस्ट आ सकता था एज अ बेस्ट, पर अनफोल्डेड सिचुएशन एज अ बेस्ट, लाइक ऐसा होना चाहिए था. सो बी ऑप्शन इज नॉट गोइंग टू बी देयर, राइट. सी को हम वैसे ही एलिमिनेट कर आए थे. हॉलिस्टिक का मतलब होता है समथिंग विच इज ओवरऑल, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हर तरीके से हर जगह से डेवलपमेंट हो रहा है. ट्रांसपायर इज गोइंग टू बी द वर्ड विच इज रिलेटेड विद कोई किसी चीज को, किसी सीक्रेट को रिवील करना, काइंड ऑफ अ थिंग. तो विटामिन ई हैज रिवील्ड एज अ ग्रेट सॉल्यूशन. वो उसने एक सीक्रेट रिलीव किया है? नो, एब्सोल्युटली नो. सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो नहीं बैठेगा, राइट. सो यस, माय आंसर इज गोइंग टू बी ए. I hope you people are getting the concept of attempting the questions which are based on vocabulary. मैं sentence के हिसाब से vocabulary को कैसे